Psychosis is a condition that affects the way your brain processes information. It causes you to lose touch with reality. आप ऐसी चीजें देख सुन या विश्वास कर सकते हैं जो रियल नहीं है. साइकोसिस एक सिम्टम है, बीमारी नहीं. It can be triggered by a mental illness, a physical injury or illness, substance abuse or extreme stress, or sometimes a trauma. साइकोसिस किसी मेंटल इलनेस का सिम्टम भी हो सकता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर. Few symptoms of psychosis include difficulty in concentrating, anxiety, hallucinations, depression, and withdrawal from family and friends. An untreated episode of psychosis can result in structural brain damage due to neurotoxicity. The best outcomes result from immediate treatment, and when not treated, psychosis can lead to illness, injuries, legal and financial difficulties, and sometimes even death. Some facts that I really want to share with you all. Approximately 1% of the population suffers from a psychotic disorder as per the research. According to National Institute of Mental Health, 3 out of 100 people will experience psychosis at some time in their lives. WHO also estimates that about 7.5% Indians suffer from some mental disorder and predicts that by end of this year, roughly 20% of India will suffer from mental illnesses. According to the numbers, 56 million Indians suffer from depression and another 38 million Indians suffer from anxiety disorders. इस बारे में और जानने के लिए हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कुमार कामले जी से और डॉक्टर दीपक रहेजा जी से. ये हमारे आज के एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं और हम इनका स्वागत करते हैं मेडी सर्कल में. Hello, I am Aprajita Mehra, host of today's chat show, Understanding the Stigma of Psychosis. Dr. Kumar Kamble is a professional sexologist and also a de-addiction specialist. We also have with us Dr. Deepak Raheja, who's a senior psychiatrist and psychotherapist and has been associated with the field of mental health and wellness for over 2 decades. He is the director of Hope Care, Delhi. Dr. Raheja currently heads the Department of Psychiatry at Paras Hospitals, Gurgaon, Sama Nursing Home, and Ashlok Hospital in Delhi, and is a senior consultant psychiatrist to many diplomatic missions. Acknowledging his contributions, the Government of India conferred upon him the prestigious Indira Gandhi Priyadarshini Award for outstanding services, achievements, and contributions in the area of community services in mental health in the year 2007. He is presently President of Delhi Psychiatric Society, Vice President, Indian Association of Private Psychiatry, Delhi Chapter, and Zonal Member. He is also National Executive Council, Indian Association of Private Psychiatry. Hello all, welcome to the show Bindas Bol. और आज के शो का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्टिग्मा ऑफ साइकोसिस. सबसे पहले शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी और काम की जानकारी के साथ. More than 69% of people with schizophrenia are not receiving appropriate care. 90% of people with untreated schizophrenia lives in low and middle income countries. Lack of access to mental health services is an important issue. Furthermore, people with schizophrenia are less likely to seek care than the general population. डॉक्टर कुमार कामले, आप बताइए सबसे पहले हमें कि स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस के बीच क्या संबंध है और न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या डिफरेंस है. थैंक यू अपराजिता जी फॉर द क्वेश्चन. साइकोसिस की जब भी हम बात करते हैं तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, एक सिंपल सी वाक्य में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं कि लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी, मतलब वास्तविकता से संबंध ना होना. और इसी मूलभूत धारणा पर आधारित जो है इससे आगे की चीज़ें तैयार होती है, जैसे डेल्यूजन्स होता है, हेलुसिनेशन होता है. डेल्यूजन मतलब क्या? तो डेल्यूजन मतलब एक धारणा होती है, एक बिलीफ होता है जी. और वो वास्तविकता से भले ही परे हो, लेकिन जो व्यक्ति में वो मौजूद होता है उसे वो सही
और असली लगता है। उदाहरण के तौर पे मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये सिंपल सा एक डेल्यूजन हो सकता है। भले ही कोई बात ना कर रहा हो, लोग आपस में किसी और मामले में बात कर रहे हो, लेकिन उसे उस व्यक्ति को ये धारणा होती है कि वो मेरे बारे में ही बात करे। तो ये एक प्रकार का डेल्यूजन है, ये एक कोर फीचर है साइकोसिस के मामले में। और दूसरा जो हेलुसिनेशन होता है, मतलब भ्रम की स्थिति, अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशन होते हैं। ऑडिटरी मतलब सुनाई देने वाले हेलुसिनेशन, विजुअल मतलब देखने के गड़बड़ी के जो है उन्हें विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। स्मेल, ऑल्फैक्टरी, कुछ गंध आती है जो मौजूद नहीं है लेकिन वो महसूस की जाती है पेशेंट के द्वारा साइकोसिस की कंडीशन में। तो इस तरह के अलग अलग जो है डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस, ये बेसिक साइकोसिस का एक हिस्सा है। और साइकोसिस ये एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया, अगेन आपने जैसे पहले इंट्रोडक्शन में काफी सारी चीजें समझाई, मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए हम कहेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक परेशानी है जिसमें अलग अलग तरीके के डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, ये कोर फीचर्स देखे जाते हैं। और अलग अलग टाइप्स भी स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं, वो बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये मूलभूत जो संकल्पना हम बांध रहे हैं कि वास्तविकता से संबंध ना होना और उसके बावजूद व्यक्ति का उसके ऊपर विश्वास करना, फिर वो बिलीफ होगी तो वो डेल्यूजन के मामले में कहा जाएगा। और अगर उसे कुछ भ्रम होते हैं, कान में सुनाई देने के भ्रम, दिखने के भ्रम, गंध के भ्रम, या शरीर के ऊपर कुछ हरकत महसूस होती है उससे जुड़े हुए भ्रम, ये अलग अलग तरीके के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तो ये दो कोर फीचर्स के साथ साइकोसिस जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया को एक परिभाषा देने में मदद करने वाला एक हिस्सा कहा जाता है। और न्यूरोसिस और साइकोसिस, ये मोटे मोटे तौर पर ये टर्म्स इस्तेमाल की गई है जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन दोनों को थोड़ा, इन दोनों के बीच का भेद समझने की कोशिश करेंगे तो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है इंसाइट। मतलब अपने आप में कोई बीमारी है उसके बारे में जो समझ और जानकारी होना, मुझे ये बीमारी है, इसे हम इंसाइट कहते हैं। जैसे मुझे अगर शुगर की तकलीफ है तो मैं जानता हूँ मुझे डायबिटीज की परेशानी है, और अगर मैं सही तरीके से इसका ध्यान ना रखूं तो मेरे शुगर रेज हो सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ इंसाइट के मामले में। और तो इस जानकारी और इस एप्रिसिएशन को हम इंसाइट कहते हैं। अगर ये जानकारी और एप्रिसिएशन ना हो, अगर किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन में ये चीज जो है इंसाइट जो है, खुद के अंदर मौजूद बीमारी के बारे में एक्नॉलेज ना करना, जानकारी ना होना और उसको अप्रिशिएट ना करना कि मुझे कुछ बीमारी नहीं है, ऐसे अगर व्यक्ति सोचता है तो उसे इंसाइट की कमी कहेंगे। तो वो साइकोसिस में देखी जाती है। साइकोसिस के मामले में कई बार व्यक्ति कहते हैं कि मुझे तो कुछ बीमारी हुई नहीं है, मैं तो बढ़िया हूँ, मुझे कुछ परेशानी नहीं है, ये बाकी के लोगों को दिक्कत है। तो ये जब इंसाइट ना होता है तो उसे साइकोसिस के छोर के लक्षणों के साथ जोड़कर देखा जाता है। और जब इंसाइट होता है तो उसे न्यूरोसिस के लक्षणों के साथ जोड़कर देखा जाता है। न्यूरोसिस इसके ऑपोजिट। इंसाइट के मामले में हम सर बस डिफरेंशिएट करने में हम जब देखते हैं तो इंसाइट मौजूद होती है। हाँ, जैसे डिप्रेशन की कई बार परेशानी में लोगों को जानकारी होती है कि मुझे उदासीनता की बीमारी है, अवसाद की बीमारी है। तो ये जो मैंने अप्रिशिएट किया, मुझे ये बीमारी है और उसके अगर मैं इसे ट्रीट ना करूं या अगर मैं ट्रीटमेंट लूं, इससे जुड़ी हुई समझदारी, इन सारी चीजों को कुल मिलाकर हम इंसाइट कहेंगे। और अगर वो मौजूद है किसी मन की बीमारी में तो वो न्यूरोसिस कहलाने के ज्यादा करीब होती है। तो ये बेसिक आपका जो मूलभूत प्रश्न था, ये 3 तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने ये एक्सप्लेन किया है सर। मुझे लगता है कि मेडी सर्कल के माध्यम से जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं वो अब काफी हद तक इसके बीच का अंतर समझ पाए होंगे। सर, क्योंकि पैनल पे जब इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हों तो मेरा अगला प्रश्न सर हमारे डॉक्टर दीपक से है कि सर आप हमें बताइए कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई साइकोसिस से गुजर रहा है, और क्या कोई अपनी साइकोसिस होने से अवेयर हो सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? देखिए, साइकोसिस के ब्रॉडली हम 3 फेज मान सकते हैं, जिसको एक को प्रोड्रोमल फेज कहते हैं,
दूसरे को अक्यूट फेज कहते हैं और तीसरे को रिकवरी, स्टेबलाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अक्यूट फेज में जब साइकोटिक सिम्टम फ्लोरिड होते हैं, जिसका अर्थ है व्हेन दे आर वेरी विजिबल, उस समय साइकोसिस को पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा डॉक्टर कुमार ने बखूबी अभी बताया कि ये जब सिम्टम्स का पूरा संकलित होके जब वो पर्सनालिटी को ग्रसित करते हैं, एक व्यक्ति जो कि डिल्यूजन से ग्रसित है, उसकी डिल्यूजन का अर्थ क्या है? A firm, fixed, false belief which is present despite evidence of contrary and which cannot be explained on the social, cultural, religious or educational background of an individual। जिसका अर्थ आम भाषा में ये होगा कि एक भ्रमित सोच, लेकिन वो मेरे लिए भ्रमित नहीं है, वो भ्रमित इसलिए है बिकॉज 10 people collectively think that that is not normal। एक बहुत विद्वान साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, थॉमस साज शायद साइकाट्रिस्ट ही थे, जिन्होंने बहुत कई सालों पहले, कई डेकेड्स पहले बहुत बखूबी ये कहा था कि क्या साइकोटिक व्यक्ति या स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो अबनॉर्मल समाज में रह रहा है? तो ये कौन तय करेगा कि नॉर्मल वो हैं या नॉर्मल हम हैं जो उनको अब नॉर्मल कह रहे हैं? एक रात में आपने एक व्यक्ति को पाया कि वो निवस्त्र घूम रहा है, इज वॉकिंग विदाउट बेयर क्लोथ्स, तो आपका पहला जो डायग्नोसिस होगा वो साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिक साइकोसिस की तरफ जाएगा। लेकिन उसी रात में शहर में उसी तरह के लिबास, छोटा लिबास लेकिन नग्न अवस्था में आपने 50 व्यक्ति पाए, तो आपको समझ आया कि ये शायद एक ब्रॉड कल्ट का हिस्सा है, कुछ ऐसे जैन का एक सेक्ट है जो इतना बड़ा त्याग करते हैं कि वो वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। हम उन्हें तो साइकोटिक नहीं कहते, स्किज़ोफ्रेनिक नहीं कहते। सो कलेक्टिवली व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि टू आइडेंटिफाई, टू बी एबल टू सी अ पर्सन जो अपनी हकीकत जो वो बयां कर रहा है, जो कि उसके जीवन में एक सिग्निफिकेंट डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर रही है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं कोई भी ऐसा कार्य करता हूं जो समाज की जो जो नीतियां बनी हुई हैं, जो एक समाज को चलाने की एक प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन बना हुआ है, जब उस दायरे से मैं 30% से ज़्यादा डिसएग्री करता हूं तो मेरे पे फिर समाज एक ओनस डाल देता है कि एक्सप्लेन करिए कि आप ये क्यों कर रहे थे, नहीं तो हम इसे इलीगल की कैटेगरी में करार देंगे। और फिर इलीगल की कैटेगरी में आते ही दो ही चीज़ें हो जाएंगी, या मैं क्रिमिनल हूँ या मैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पा रहा हूँ। और अगर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब मैं बीमार हूँ, और अगर मैं बीमार हूँ तो जाहिर सी बात है मैं साइकोटिक हूँ। तो एक आम भाषा में जिसे कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सूद बूद खो दे, जो हकीकत से जुदा हो। मैं सुन रहा था डॉक्टर कुमार ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया सिम्टम्स को, जो हकीकत से जुदा हो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो साइकोटिक है या स्किज़ोफ्रेनिक है। बहुत ही आप ही का शब्द आ रहा है, बखूबी आपने एक्सप्लेन किया है और इतने डिटेल्ड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे ऑडियंस को एक क्लैरिटी मिलने लग गई है इस विषय में। सर, मैं चाहूंगी कि साइकोसिस के स्टेजेस क्या हैं और इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को कैसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, आप इस पर कुछ बताएं। देखिए, ब्रॉडली स्टेजेस मैंने आपको बताए। प्रोड्रोम में आइडेंटिफाई करके भी हम बहुत हासिल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अभी भी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है हमारे पास, स्पष्ट रूप से नहीं है कि उस पीरियड में हम एंटीसाइकोटिक दवा दें या ना दें। जो नई दवाएं हैं जिनको SDAs कहा जाता है या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है, ये काफ़ी सेफ दवाएं हैं। और क्योंकि साइकोसिस की या स्किज़ोफ्रेनिया की जो न्यूरोबायोलॉजी है, अब हम ये समझ पाए हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो एक सिंड्रोमल डायग्नोसिस है, तो ये नई दवाओं को हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये डिज़ाइनर दवाएं हैं जो कि मल्टीपल न्यूरोकेमिकल्स पे काम करती हैं। और क्योंकि ये मल्टीपल न्यूरोकेमिकल्स पे काम करती हैं तो फिर हमने ये भी पाया कि इनको देना
अपने आप में एक बहुत बड़ा मूलत बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है. अर्लियर वी वर वेरी वेरी बिकॉज some of the traditional antipsychotics that we dealt with had very very serious side effects. तो हम बहुत श्योर होना चाहते थे. तो अब प्रोड्रोम में या उसमें अब ये दवाएं ऐसी हैं जो आप मूड डिसऑर्डर में भी दे देते हैं. थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, साइकोसिस अपने आप में पैथोगोनोमिक नहीं है. अगर साइकोसिस होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया है. साइकोसिस स्किज़ोफ्रेनिया में भी हो सकता है, साइकोसिस मूड डिसऑर्डर में भी हो सकता है, साइकोसिस ऑर्गेनिक कंडीशन में भी हो सकता है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस जहाँ पे बहुत इंटेंस स्टिमुलेशन होती है सेंसेशन की या डेप्रिविएशन होती है. जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसे आईसीयू साइकोसिस कहा जाता है, जो कि बहुत रेयर नहीं है. एक व्यक्ति जब लंबे समय तक आईसीयू में रहता है तो वो एक खास तरह की स्टिमुलेशन के दायरे में रहता है, और बाकी स्टिमुलेशन वर्ल्ड से ब्रॉड सनलाइट, लोगों से मिलना, लोगों को देखना, वो दूर हो जाता है. तो उनके अंदर भी एक ब्रीफ पीरियड के लिए साइकोसिस आ जाता है. तो अपने आप में साइकोसिस पैथोगोनोमिक नहीं है. जैसा आपने भी अपनी इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर तरीके से कहा कि ये एक सिम्टम है, उसको रिकग्नाइज करके हमें उसे ट्रीट करना है. और जो आपके सवाल का जवाब था, ऐसे व्यक्ति को संवेदना की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और इलाज की ज़रूरत है. और इस भ्रम को निकालना होगा कि उस पीरियड में काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फैमिली सपोर्ट ये सिर्फ व्यक्ति को मूलत सपोर्ट देने के लिए है. मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ओनली मेडिकेशन. दवा, जब तक दिमाग के जो न्यूरोकेमिकल्स गड़बड़ाए हुए हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक व्यक्ति नॉर्मल नहीं होगा. इसका इलाज बातचीत नहीं है, इसका इलाज काउंसलिंग नहीं है, साइकोथेरेपी नहीं है. वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज उस पीरियड में जब तक आपको व्यक्ति की सपोर्ट नहीं मिलेगी, एक थेरेप्यूटिक उसके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा, तो आप एक एडल्ट को पकड़ के ज़बरदस्ती दवा खिलाएंगे कैसे. और अब तो हमारे देश के भी फॉर्चुनेटली कानून बहुत स्ट्रीमलाइंड हैं और बहुत वेल डिफाइंड हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि या तो व्यक्ति इतना बीमार है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, या सेल्फ निग्लेक्ट सीरियस इनफ टू हैव लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस. इस कंडीशन में तो सेक्शन 89 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट में अगर आप एक लाइसेंस्ड साइकाट्रिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हैं तो आप मरीज को वहाँ पे आइसोलेट करके उसका इलाज शुरू कर सकते हैं. अगर वो व्यक्ति इस दायरे में नहीं है तो आपको उसे सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी होगी, नहीं तो आप उसको दवा कैसे खिलाएंगे. तो एक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वी आर अ वेरी लविंग कल्चर, वेरी ह्यूमन कल्चर, मरीज़ हमारे पास रिश्तेदार आते थे, कहानी सुनाते थे और हम कहते थे अच्छा एक काम कीजिए, ये दवा की कंपनी बहुत बढ़िया है, ये दवा बनाती है जो कि कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको इंसाइट नहीं है, ये दवा डालिए और खाने में दे दीजिए. अब फर्ज करिए डॉक्टर कुमार को या आपको और या मुझे ये पता लगे कि हमारे परिवार ने पिछले 3 महीने में तय किया कि हम बीमार हैं, कहीं केमिस्ट से उन्हें दवा का नाम पता लग गया और 3 महीने से वो हमें दवा खिला रहे हैं, हम पे क्या गुजरेगी. सो दिस ऑल्सो नाउ द लॉ क्लियरली सेज कैन tantamount to poisoning a person. So you have to be in touch with a psychiatrist. He has to establish कि बीमारी कितनी सीवियर है, और अगर सीवियर नहीं है तो जो आपने कहा फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर की सपोर्ट, संवेदनशीलता, ताकि उसकी हकीकत से हटते हुए भी हम कम से कम उसको दवा लेने के लिए राज़ी कर सकें. अगर दवा अंदर जाने लगेगी, जादू धीरे धीरे नज़र आएगा और व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा. So these are some of the very important things that we need to keep in consideration. How wisely put into words, sir. And I'm sure कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात की लगातार गंभीरता को समझ रहे हों कि जितने बीमारी उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण है, उतना ही सपोर्ट आपका और ये सहानुभूति कितनी आवश्यक है ऐसे व्यक्ति के लिए, उससे उबरने के लिए. एक और फैक्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ हमारे ऑडियंस के साथ कि साइकोसिस कैन बी कॉज्ड बाय सम मेडिकेशंस, alcohol or drug abuse. 3 out of 100 people will experience psychosis at some time in their lives. About a lakh of adolescents and young adults experience their first episode of psychosis each year.
डॉक्टर कुमार कामले, मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर दें कि साइकोसिस में शामिल रिस्क फैक्टर्स या ट्रिगर्स क्या हैं? किसी की भी समस्या से पीड़ित होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? इसके लिए अभी तक जितना रिसर्च चल रहा है, मतलब इसे कई मायनों में हम समझ रहे हैं। ऐसा पर्टिकुलर पिन पॉइंट ये नहीं है कि ये है इसके वजह से साइकोसिस हुआ। कई सारी थियरीज है, कई सारा रिसर्च चल रहा है, बट अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो बायोलॉजिकल तौर पर, मतलब जैविक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, मतलब सोच विचार के स्तर पर, और सोशल मतलब आसपास से जुड़े हुए कारणों का, इन तीन चीजों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो अलग अलग तरीके के ट्रिगर्स मौजूद है या अलग अलग तरीके के कारण मौजूद है जिसके वजह से साइकोसिस के तरफ व्यक्ति ढकेला जा सकता है। सो बायोलॉजिकल तौर पर अगर समझे तो जेनेटिक लेवल पे अगर आपको ये प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब या तो आपके घर के आपकी मम्मी या पापा, इनमें से किसी एक व्यक्ति को साइकोसिस की समस्या है तो आप में 12% संभावना है कि आपको साइकोसिस हो सकता है। मम्मी पापा दोनों को अगर साइकोसिस है तो आपको 40% संभावना है कि आप साइकोसिस की तकलीफ से पीड़ित हो सकते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े हुए आंकड़े हैं और ये जेनेटिक लेवल पे होगा, मतलब अनुवांशिक लेवल पर हो गया। लेकिन अभी इससे ही थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने कहा था ड्रग्स से जुड़ी हुई समस्या, जी हाँ, कैनबिस जो वीड कहा जाता है, कैनबिस कहा जाता है, बेसिकली अलग अलग कैनबिस के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। भांग, चरस, हशीश, गांजा, मुनक्का, अलग अलग तरीके के ये जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, इसके सेवन से आपको संभावना बढ़ जाती है कि आप साइकोसिस के प्रति आपके पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नशे के पदार्थ जो है वो भी आपको साइकोसिस की समस्या के ओर ढकेलने की संभावना बढ़ा देते हैं। इसके साथ सोशल स्ट्रेसर जो है, मतलब अचानक जो जिंदगी में कोई तो एक बहुत टेंशन वाली चीज घटना घटित हो गई। कई लोगों के मामले में ब्रेकअप हो गया, या नौकरी से निकाल दिया, या बहुत ही बड़ी आर्थिक समस्या आ पड़ी, डिवोर्स हो गया, या शादी तय हुई थी और शादी टूट गई। ऐसे अलग अलग तरीके के सोशल एनवायरनमेंट में के जो है, ये जो घटनाएं हैं, प्रसंग है, ये घटित होती है और ये इसके वजह से जो टेंशन दिमाग पर आता है उसके वजह से भी जो लोग पहले से वल्नरेबल है, थोड़े संभावित है कि उन्हें साइकोसिस की समस्या हो सकती है, उनमें ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब लक्षण उभर के आ जाते हैं ऐसे इन कारणों के वजह से। तो इस तरीके के ये अलग अलग स्तर पर हम कारण और रिस्क फैक्टर्स भी समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर और सोशल तौर पर। सो ये मोटे मोटे तौर पर इस तरह हम समअप कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑडियंस का प्रश्न आया है अभी सर, जो कि डॉक्टर दीपक को एड्रेस था कि उन्होंने कहा है कि मेरा एक 16 साल का बेटा है जो देर रात तक जागता रहता है। उनका कहना है कि मेरी शादी ट्रबल्ड मैरिज थी एंड माय सन वाज एक्सपोज्ड टू इट। मैंने उसे खुद बड़बड़ाते और सोते हुए बात करते हुए भी देखा है। तो इनका प्रश्न ये है कि क्या ये साइकोसिस का संकेत है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से कई बार हमारी समस्या ये बन जाती है कि हम ओवर एनालाइज या ओवर डायग्नोज करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ क्रिटिकल अथॉरिटीज़ ने एक शब्द इस्तेमाल किया है। लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर इट राइट। इट इज़ साइकाइट्रियाइजेशन ऑफ normal life. All So right. and a lot of time we psychiatrists get into disrepute कि अगर आप उनके पास गए तो भाई दवा लेके ही आएंगे और फिर उनके चक्कर लगाते रहेंगे आजीवन। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी ना करें। एक नॉर्मल सिम्टम हो सकते हैं, जवान बच्चा है, बड़ा हो रहा है, पोस्ट एडोलेसेंट अभी निकला है, नींद का अभाव, हड़बड़ाहट, एक
पीयर ग्रुप प्रेशर और तेजी में कई बार कुछ लोग आम रूप से अमूमन नींद में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, या आजकल तो अगर ये हमने 20 साल पहले चले जाएं तो आजकल जो समाज का हम रूप दे रहे हैं सारे ही साइकोटिक नज़र आए, बिकॉज वो कान में लगा हुआ ब्लूटूथ नज़र नहीं आता और ये So लगता है हर true. हर व्यक्ति So बड़बड़ा रहा है अपने आप से, करे भैया ये true. तो मरीज लग रहा है, फिर देखते हैं कि वो कान में लगा के और अपना बात करता हुआ चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अक्सर बच्चे वो लगा के कुछ गुनगुनाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ना अपने बच्चे के लिए ऐसा विश करें, ना ओवर एनालाइज करें। मुझे नहीं लगता ये साइकोसिस है, क्योंकि अगर ये साइकोसिस होता तो आप ये सवाल ना पूछ रहे होते, अब तक डॉक्टरी परामर्श उसको मुहैया करा बैठे होते। बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ नीड हम बहुत क्रिटिकल होते हैं, डॉक्टर के पास मत जाइए, दवाइयाँ जो है आदत डाल देती हैं, फलाना ढीगड़ा। लेकिन जिस तन बीते वो तन जाने, जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो दूसरे को तो सलाह दूसरी देता है और दौड़ता हुआ फटाफट नंबर लगा लेता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पहले देख लीजिए और बढ़िया से बढ़िया दवा दीजिए। अरे भाई तुम उनको तो, शर्मा जी को तो कह रहे थे कि ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, अरे नहीं डॉक्टर साहब गलती हो गई, तो मेरे बच्चे को तो बढ़िया दवा दीजिए। So I think we Right. need to simplify, not overanalyze, but also if there is a need, please don't hesitate. Go to a doctor. इसमें हम एक अर्बन वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे अपने आप को सही एम्पावर्ड ज़िंदगी जीने से मुहैया मत कराइए। और साइकोसिस का एक बहुत मूल निचोड़ है रिसर्च का, वो ये है कि जितना आप देर से इलाज शुरू करते हैं उतनी ही पकड़ ढीली पड़ सकती है, पूरी तरह रिकवरी आने में मुश्किल हो सकती है। सो द सूनर वी स्टार्ट, इट प्रिवेंट्स डैमेज टू सर्टन स्पेसिफिक सर्किट्स इन द प्री कॉर्टिकल एरियाज और कॉर्टिकल एरियाज, और जिसके कारण आगे रिकवरी बेहतर हो जाती है, प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। I think more than anything, we need to normalize going to to seek a doctor and seek this kind of mental help. पर लेकिन Because लेकिन एक बात आपको और बता देता हूँ, ये बड़ी खास सीक्रेट है कि जितना स्टिग्मा हमारे यहाँ है उतना स्टिग्मा वर्ल्ड ओवर भी है। और जितना हम ज्ञान लोगों को देते हैं, हमारे यहाँ पे केमिस्ट साहब भी डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ पड़ोस के वर्मा जी भी डॉक्टर हैं, वो सामने वाली संध्या आंटी भी डॉक्टर हैं, सही लेकिन कह रहे जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम चुपके से पीछे वाली सीढ़ी से जाके फटाफट अपने आप को नंबर लगा लेते हैं। विच इज़ वाई डॉक्टर कुमार विल अग्री, मोस्ट ऑफ अस आर फेयरली बिजी। तो ये कहाँ स्टिग्मा अगर होता तो फिर लोग क्यों आते? बिकॉज नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आर लिमिटेड, जिसकी वजह ये जो पूरा एक हवा बना दिया कि स्टिग्मा है, तो सारा मरीज तो डॉक्टर के पास जाता था कि नहीं जाता था, मुझे लगता है ज़रूर जाता था। काफ़ी डॉक्टरों ने सकाइट्री लेना कम कर दिया, बिकॉज बहुत मुश्किल ब्रांच है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ नफ्स देख के, गला पकड़ के और स्टेथोस्कोप लगा के एक फिजिशियन 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट एक्स्ट्रा वो लगाता है पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, बहुत सुंदर डायग्नोसिस बना लेता है और मरीज को टोटली सेटिस्फाई कर देता है, वो थैंक यू बोल के जाता है। वहाँ कई बार हमें मरीज़ के साथ वो कंफर्ट बनाने में, वो हीलिंग देने में 1-1 घंटा लग जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद माइंड्स विच आर अनवेल, विच आर अनस्टेबल। भाई डॉक्टर कुमार के तजुर्बे के साथ या एक लंबे समय से मैं भी काम कर रहा हूँ, मरीज़ को अगर दवा की ज़रूरत है और क्या दवा देनी है ये हमें ब्रॉडली पहले 5 मिनट में पता लग जाता है। लेकिन कई बार उस सेटिस्फैक्शन को लाने के लिए, ताकि जब मरीज़ अंदर से बाहर जाए, जब आप एक स्पा में जाते हैं, आप 1 घंटा लगाते हैं, पैसा देते हैं, तो स्पा करके आते हैं, बाहर आके कहते हैं आह मज़ा आ गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज़, जो काफ़ी बार अंदर आके जब बाहर भी आते हैं एक डॉक्टर को विजिट करके, दे मे नॉट सीम वेरी हैप्पी, बट मोस्टली व्हेन यू गो इन एंड कम आउट यू शुड फील you've बीन हर्ड, you've been listened to, and you've been advised appropriately. So sometimes that's a very arduous process and has a lot of bearing on the soul of the mental health practitioner also. So putting it all together, it is a challenging field all over the world, or I think
हमें मीडिया ने बहुत मदद की है, आप जैसे लोगों ने बहुत मदद की है इसको डीस्टिग्मेटाइज करने में, बट आई थिंक वे वी आर इज वेरी गुड फुटिंग। उसके बाद लेट पीपल फेंड फॉर देमसेल्व्स, बहुत डीस्टिग्मेटाइज नहीं करें, फिर लोग ओवर एनालाइज करने लगते हैं या फिर घबरा जाते हैं कि अब ये कोई एजेंडा चल रहा है, भाई ये तो मीडिया का एजेंडा चल रहा है या डॉक्टरों का एजेंडा चल रहा है। एक बड़ी अच्छी आपको एक वारदात याद आती है, एक किस्सा याद आता है, बताता हूँ। कई साल पुरानी बात है, इज लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड अ हाफ बैक। आई वाज लुकिंग आफ्टर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस सन। फॉर्चुनेटली कई बार हमारा फॉर्चून होता है कि इस तरह के लोग को ज़रूरत पड़ती है तो वो आम स्तर के डॉक्टरों के पास भी पहुंच जाते हैं हम जैसे। सो he would refrain from coming in the picture to talk. So once he had come, he had sent the car to pick up his son. There was a small function that was happening where we had invited the families of the inpatients. तो ये मंत्री महोदय बाहर निकले, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात गूंजी, उन्होंने कहा कि चलिए मैं अंदर चलता हूँ। अंदर आ गए, बैठे, हमारा तो फ़र्ज़ है अनोनिमिटी मेंटेन करना, हम तो ना नाम लेंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, पर उन्होंने खुद ही 15-20 मिनट के बाद जो वाइब बनी, उन्होंने कहा नहीं मैं भी शेयर करना चाहूँगा। ताज्जुब हुआ लेकिन ज़रूर करिए। स्टेज पे आए, उन्होंने बखूबी अपना परिचय दिया, बताया मैं कौन हूँ, वेरी नोन एंटिटी। और उसके बाद उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा मेरे को सबसे बड़ा डर था कि मैं अपने परिवार में भी ये कहा करता था कि सकाइट्रिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, दवाएं खाते रहोगे और सारी ज़िंदगी चक्कर लगाते रहोगे। लेकिन डॉक्टर रहेजा से मिलके मुझे एहसास हुआ कि जब मुझे 10 बार फ़ोन करना पड़ता है इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए और मैं मंत्री हूँ, तो इसका मतलब ऐसा कोई भय को मन से निकालना बहुत ज़रूरी है कि ये बरगला के लोगों को फंसाएंगे। सो इफ़ यू नीड हेल्प, डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम सीकिंग दैट हेल्प। सो I would very strongly recommend, and I would very strongly say that I don't think, again, as a society we need to go overboard in convincing people that they should go to doctors, or the other way around. I think we are at a stage now where we can cruise through and let people decide if they need help, at a point where people of psychosis, people suffering from psychosis, patients suffering from psychosis can become hazardous enough for their own safety, for safety of others, for self neglect that they can cause to themselves, which can have life threatening consequence. तो उसमें कानून एक प्रावधान के चलते, एक डॉक्यूमेंटेशन के चलते इजाज़त देता है एक डॉक्टर को पूरी सहमति बनाते हुए, परिवार के साथ मरीज़ को देखते हुए, कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ भी, उसकी मर्ज़ी के बियॉन्ड भी वो मरीज़ को एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में उसका इलाज कर सकता है। सो फॉर दोज पेशेंट्स, अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी हैज़ टू पुट चेक्स एंड बैलेंसेस कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। वो आपका परिवार भी हो सकता है, मेरा परिवार भी हो सकता है। वी डोंट वेट फॉर देम टू हार्म देमसेल्व्स एंड से ओ दिस इज ऑटोनॉमी एंड वी विल ओनली ट्रीट पीपल हु वांट टू गेट ट्रीटेड। इन द प्रोसेस they might kill themselves, they might be suicidal, or they might kill somebody else, they might be homicidal. So we need to take charge and then start treating them. Apart from that, I think we owe to either keep talking to them to convince them to seek help, or to wait and watch to see how the illness will pan out. A lot of illness will get well on its own. काफ़ी इसमें बीमारियां सेल्फ रिमिटिंग भी होती हैं। एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि इलाज ही देना पड़ेगा, दवा ही देनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ ड्रग इंड्यूस कंडीशन होती हैं, दवाओं के चलते साइकोसिस हो जाता है, किसी नशे के चलते हो जाता है, भांग, कैनबिस, ये बहुत कॉमन कंटामिनेंट्स हैं जिसके चलते साइकोसिस हो जाता है। ये कई बार अगर जो कंफाउंडिंग वेरिएबल को हटा दिया जाए, उस नशे को हटा दिया जाए, तो कई बार सेल्फ रिमिटिंग होती हैं, थोड़े समय में ठीक भी हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें चार्ज लेना है, और लेकिन अगर वो दिखे कि वो ठीक हो रही हैं तो होने दीजिए, आपका दिल करे तो डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर वो बिगड़ रही हैं तो फिर आप ये पूछेंगी नहीं, जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि क्या मैं कंसल्ट करूं, देन यू रन टू अ डॉक्टर एंड यू से आई नीड हेल्प, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट द सिचुएशन मे बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट इस लंबी जानकारी के बाद इतनी देर में मुझे ऑडियंस का एक और प्रश्न आ गया था, तो मैं जल्दी से चाहूंगी डॉक्टर कुमार कांबले इस प्रश्न का जवाब हमें दें।
और हमें प्रश्न आया है कि मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद से मेरी बेटी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वह अग्रेसिव और इरिटेबल हो गई है, वह कई बार अपनी माँ की आवाज सुनने की शिकायत भी कर चुकी है। आई फील शी इज डेवलपिंग साइकोसिस। पेरेंट्स के रूप में मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बाकी भी और कोई लक्षण है क्या उससे जुड़े, उसे हमें देखना है। एंड ये एक नॉर्मल रिएक्शन का हिस्सा भी हो सकता है। ग्रीफ का जो कहा जाता है, जो दुख का समय होता है किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद, तो कुछ समय तक ऐसी जो आभास होता है वो होना नॉर्मल है। सो कितने समय के लिए ये चीज से वो व्यक्ति गुजर रही है, ये जानकारी ना होने की वजह से हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो बीमारी के स्वरूप में है या नहीं है, बट बेसिकली उसे और थोड़ा समय दे। और अगर इस कंडीशन का उनकी बाकी चीजों के ऊपर असर पड़ने लग जाता है, जैसे भूख में गड़बड़ी है, नींद में गड़बड़ी है, पढ़ाई में गड़बड़ी होने लग गई है, आसपास के लोगों से बातचीत, चित्परित लोगों से बातचीत करना कम हो गया है, तो अगर इन चीजों में अगर उस बर्ताव का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, तो फिर हमें सोचना जरूरी है कि क्या ये मन से जुड़ी कोई परेशानी है। और अगर वो है तो फिर एक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिटेल में चर्चा कीजिए। अलग अलग संभावनाएं हो सकती है, वो डॉक्टर से जानकारी लेने के बाद ही तय हो पाएगा कि ये साइकोसिस है या नहीं। इतनी सी जानकारी पे हम ये लेबल नहीं कर पाएंगे। सो इट कैन बी नॉर्मल प्रोसेस आल्सो, और इट कैन बी सम सिम्टम रिलेटेड टू साइकोसिस, बट इट एज ठोस ठोस तरीके से हम नहीं कह पाएंगे कि हाँ ये साइकोसिस है अब इतनी सी जानकारी के बेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामली। आई थिंक हमारे ऑडियंस में जो भी वो बता रहे हैं तो उन्होंने काफी हद तक बात समझ ली होगी। तो इतनी कम छोटी जानकारी पे आप पूरा डायग्नोसिस नहीं बता सकते हैं, दो विच इज वेरी वैलिड एंड प्लॉजिबल रीजन टू दिस। मैं अपने अंतिम प्रश्न से पहले शेयर करना चाहती हूँ कि स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेडेक, डिप्रेशन एंड मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स up to 5 years after the event. तो ऐसे में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी साइकोसिस की ओर कैसे ले जा सकती है? डॉक्टर दीपक, आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ब्रेन का किसी भी तरह का ट्रॉमा, कंकशन, हेड इंजरी, कोई बीमारी, और आजकल एक बहुत अहम बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोविड है। और कोविड के बाद जो न्यूरोसाइकाट्रिक सिक्वेल्स हैं वो बहुत एविडेंट होने लगे हैं। साइकोसिस के केसेस सामने आ रहे हैं, मूड डिसऑर्डर के केसेस सामने आ रहे हैं, फ्रैंक मैनिक एपिसोड्स के केसेस सामने आ रहे हैं। और आगे चल के क्या खामियाजा होगा हम नहीं जानते। हम बहुत एंक्शस नहीं होना चाहते, बहुत डरना नहीं चाहते, बट वी आर केयरफुली वॉचिंग। और भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स वर्ल्ड ओवर से आने लगी हैं। इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स अभी तक क्लियर नहीं है कि ब्रेन के अंदर क्या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी साइकोसिस की तरफ लीड कर सकती है। उसके कारण अभी मूल रूप से पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है कि कंकशन या कोई बीमारी दिमाग के कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल हिस्सों में क्या बदलाव लाती है। देखिए, दो बहुत अहम एरियाज, एक बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक एरिया, और थैलेमस जो है, ये एक रिले स्टेशंस की तरह काम करते हैं। हमारी जो इफरेंट इम्पल्सेस हैं और एफरेंट इम्पल्सेस हैं, इनको कोऑर्डिनेट करना, कैसे इनको सेंसर करना, कहाँ पे एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को, कहाँ पे मिनिमाइज करना, जो बहुत गूढ़ अध्ययन हुए हैं इन टर्म्स ऑफ पेट स्कैन और स्पेक्ट स्कैन्स के द्वारा। उसमें हमने देखा है कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो हाइपोमेटाबॉलिक होते हैं, कुछ एरियाज़ हाइपोमेटाबॉलिक होते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि ये इस तरह के ट्रॉमा, और एक मूल ट्रॉमा जिसकी आजकल हम काफ़ी बात कर रहे हैं, जो कि कोविड रिलेटेड ट्रॉमा है, और उसके न्यूरोसाइकाट्रिक कॉन्सिक्वेंसेस अब उभर के सामने आने लगे हैं। साइकोटिक सिम्टम्स, मूड डिसऑर्डर्स, फ्रैंक मैनिक एपिसोड्स, आगे चल के क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट एज अ ह्यूमन रेस हमें डरना नहीं है, हमें कलेक्टिवली उसको वॉच करना है ताकि कोई सिम्टम्स को हम मिस ना करें। बट देर आर, आई मीन, इवन लाइक डॉक्टर साहब सेड, the use of a substance
is also trauma. It's also an assault to the brain, which then leads to chemical disturbances, primarily in the monoamine domains, and one of the key neurotransmitter that is implicated in the causation of psychosis is dopamine. But now that we understand that it's not just purely dopamine, it's also serotonin, it's also epinephrine, norepinephrine, most of the monoamines put together, which is why the newer medicines, the designer medication, the SDAs, the second generation serotonin dopamine antagonist, they work very atypically, beautifully, recreating the lost balance, which is why in less than 50 years, we have done the journey from mental asylums, from chaining the mentally ill, from making them housebound, from fearing that it was an act of some divine calamity or some punitive thing that was happening, or some evil spirit possession, to a modern world where there is treatment, there are treatment facilities which try to be humane. There is, of course, an interface, I mean, an involuntary admission by default. I perceive it to be an invasive phenomena. लेकिन अब जिस कंडीशन में उसकी ज़रूरत है, अगर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ड्रॉ करने के बाद बहुत ध्यान से उसको एक्सरसाइज किया जाता है, तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक समाज को बचाने के लिए अगर कोई निर्णय ज़रूरी है तो उसको लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो साइकोसिस कोई भयानक बीमारी नहीं है। मैं यहाँ तक कहूँगा स्किज़ोफ्रेनिया भी भयानक बीमारी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के हम 3 मूल सिम्टम बोलते थे, साइकोसिस पे भी उसी पैराडाइम पे बात की जा सकती है: पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कॉग्निटिव सिम्टम। और आज हमारे पास बहुत बेहतरीन दवाएं हैं। ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती हैं इन दवाइयों की रिसर्च में। तो एक मिथ के चलते कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये हमारी ज़िद है, हम दवा नहीं लेंगे, ये हमारी ज़िद है, तो अगर आपकी ऐसी ज़िद बरकरार है तो मुझे ऐसा लगता है कि दवा की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। बार बार मैंने ये बात कही, जब पानी यहाँ पहुँचता है तो हमारे पास चॉइसेस ख़त्म हो जाती है, हम खुद हाथ पांव मार के देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या हैं। तो मुझे लगता है कि समझदार व्यक्ति अर्बन समाज में, और अर्बन समाज आज का मतलब ये नहीं कि शहरी समाज, अर्बन का अर्थ आज की डेट में एक पढ़ा लिखा समाज, उसका इकोनॉमिक स्टेटस से भी बहुत रोल नहीं है। एक जागरूक समाज, एक जागरूक समाज होने के लिए भी आपको स्कूल या कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है। और एक जागरूक समाज में हम इंतज़ार नहीं करते कि पानी यहाँ तक पहुँच जाए, हमारी सांस आने में दिक्कत हो, फिर हम हाथ पांव मारें। अगर पानी यहाँ है और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो मुमकिन है कि वो ऊपर भी आएगा। अंग्रेज़ी की पुरानी कहावत बहुत सिंपल है, दोहराता हूँ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो समय पे टांका लगा लेंगे तो इलाज बेहतर होगा, रिकवरी पूर्णता होगी, काफ़ी बेहतर होगी। सारी रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि प्रोग्नोसिस इज मच बेटर इफ द ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड वेल इन टाइम। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर द सिम्टम्स in your loved ones. If there seems to be a problem, there is no harm in consulting a mental health practitioner, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, किसी भी तरह का मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर आपको सही रिसोर्स पे अपने आप केंद्रित कर देगा। तो इस सलाह को ध्यान में रखते हुए मेरी शुभकामना है सबके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और अनफॉर्चुनेटली कोई अगर आपका लव्ड वन मानसिक बीमारी से ग्रसित है तो प्लीज रीच आउट एंड सीक फॉर हेल्प। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Deepak Raheja and Dr. Kumar Kamble, for your valuable time. And I hope कि हमारे viewers को जो भी सवाल थे आज उन्हें आपके दिए गए जवाबों से help मिल जाएगी। Thank you for your valuable input. Stay safe, stay healthy, and stay tuned to Medi Circle. Thank you again, both of you. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you, Dr. Kumar. Thank you. Thank you so much, sir. Big fan, big fan.